ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨ। ਸਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ SKM ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਡਸ, ਸਾਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਅਲੱਗ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੇਅਰ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਬਟ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਐਕਸਪਰਟਸ। ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ ਕਿ ਬਈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਹਾਓ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਮਹਾਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਹਰ ਚੇਂਜ ਤੇ ਅਪੋਜ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸ ਮਿਲੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਇਟ ਮਾਈਟ ਗੋ ਟੂ ਦੇਅਰ ਹੈਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਜਮਾ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਪਰ ਨਾਟ ਐਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਫਾਰਮਰਸ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ ਫੂਡ ਤੇ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਨੀਡ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਫੂਡ ਤੇ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਸਕ ਤੇ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਾਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਵੇ। ਚੇਂਜਸ ਤੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਯੂਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਸੀ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲੀ। 20, 30, 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਵਧਾਈ, ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਯੂਸੇਜ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਸਮਹਾਓ ਇਜ਼ ਲੈਕਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ। ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਪਏ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਚੇਂਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੈਲਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਸੋਲਵ ਦੀ ਪਰਪਸ। ਆਈ ਹੋਪ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਸਮਝੇ, ਰਾਈਟ, ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ, ਖੇਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਊ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਲੇਟਡ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਕਿਸ ਖੇਤੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੈਟਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਸਾਲ 4-5% ਕਿਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਰੇਅਰ ਐਂਡ ਰੇਅਰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਗਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਵਿਊ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਹ ਰਿਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੇ
ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੀ, ਰਾਈਟ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਅ ਬੈਡ ਥਿੰਗ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਥਰੂ ਖੇਤੀ ਬੜੇ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਲੋਐਸਟ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਤੇ ਬੈਟਰ ਇਨਕਮ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਚੇਂਜ ਲਈ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਰਟਨ ਰਿਸਕ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਚੇਂਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਚੇਂਜ ਵਿਲ ਬੀ ਫੋਰਸਡ ਔਨ ਯੂ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਚੇਂਜ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਦੀ ਫਿਊਚਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਰਿਫਾਰਮ ਆਉਣਗੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿੱਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਆਈਆਂ, ਦੋਵੇਂ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਸਾਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਰਨਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰੋਥ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਚਾਨਕ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖਣ ਲੱਗਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੇਖੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੈਸਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ, ਸਿੰਸੀਅਰ ਨੇ, ਤਾਂ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਥੋੜਾ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। दैट इज ऑलवेज द बेस्ट रिस्पॉन्स। सर, नूह में, हरियाणा के नूह में एक डीएसपी की हत्या कर दी गई माफिया द्वारा। तो उसमें माफिया था इन्वॉल्व जो इलीगल माइनिंग हो रही थी और उसे रोकने के लिए पहुंचे थे डीएसपी और उनकी हत्या कर दी गई। देखिए, ये बेसिकली सबसे पहले ये आपके दिमाग में क्या बात डालता है कि माफिया वाले क्या इतने पावरफुल हो गए हैं, उनको इतना संरक्षण प्राप्त है कि वो डीएसपी को भी मारते हुए नहीं सोच रहे। आज मैं अपील करूंगा पूरी पुलिस फोर्स को कि एक बार वो पॉलिटिकल प्रेशर से हटे, वो अपने इमीडिएट छोटे गेन से हटें, वो लालचों से हटें, अपनी करप्शन से हटें, और जो उनके साथी की हत्या हुई है वो पूरे हरियाणा से जो माफिया है उसको ख़त्म करके दिखाएं। एक बार उनके लिए एक लेसन बना दें, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और उनकी तार मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, ऊपर मिनिस्टरों तक, टॉप ब्यूरोक्रेट्स तक, सब तक जुड़ी होगी, बड़े बिजनेसमैनों तक जुड़ी होगी। उन सबको सबक सिखाने का टाइम है जी। ये सिर्फ एक तो ये है कि आपकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है आपकी रिसोर्सेज की, ये काइंड ऑफ ओपन सीक्रेट है हरियाणा में कि कितने ही पॉलिटिशियंस इस तरह की खनन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व है। कितने ही पॉलिटिशियंस का यही बिजनेस है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। ये बीजेपी गवर्नमेंट का हरियाणा में एक बहुत बड़ा, बीजेपी जेजेपी गवर्नमेंट बोल लो, एक काइंड ऑफ फेलियर है जी, कि वो अपने सिपाहियों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, वो अपने पुलिसमैन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, और उनके मिनिस्टर मैं इस सवाल पूछा जाना चाहिए जो वहां के माइंस मिनिस्टर हैं जी। और एक प्रोटोकॉल की बात होती है कि किस तरह से कि एक ट्रक पूरी माइनिंग चल रही है, इलीगल एक्टिविटी हो रही है, एक अकेला डीएसपी क्यों गया
जी, उसकी भी प्रोटोकॉल फॉलो होनी चाहिए, उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए, जी, राइट। तो इन सारी चीज़ों को बहुत गहराई से इस पे विचार करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है क्या साजिश है, कहाँ कहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं। और मेरे को ये लगता है कि ये मनोहर लाल खट्टर गवर्नमेंट को इस वक्त प्रूव करना पड़ेगा कि वो बात करते हैं ईमानदारी की, वो हमेशा बात करते हैं अब यहाँ पे पर्ची और खर्ची का ज़माना चला गया, बट अगर अभी भी इस तरह से इलीगल माइनिंग होती है तो इसका मतलब है कि उनको भी ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हैं। इसका मतलब है कि वो भी अपने जो वो कह रहे हैं वो अचीव करने में नाकामयाब रहे हैं। सर, पुलिस के साथ ऐसी वारदातें पहले यूपी में सुना करती थी कि यूपी में ऐसा होता था कि पुलिस का मुकाबला होता था माफिया के साथ और ऐसी हत्याएं होती थी। अब हरियाणा में ये शुरू हो गया, तो क्या समझा जाए इसको? सबसे पहले तो गवर्नमेंट का फेलियर समझा जाए। 2 शब्दों में हम इसकी साफ बात करें, कोई बात को घुमाने की जरूरत नहीं है, ये सरकार का फेलियर है, राइट। इसका मतलब है कि आपने इतना संरक्षण, इतनी करप्शन दे रखी है आपके ऑफिसर्स ने, आपके पॉलिटिशियंस ने, कि उनको परवाह नहीं है। जो बंदा ट्रक चला रहा है उसको बोला गया कि तेरे को चिंता कुछ नहीं है, हम सब कुछ देख लेंगे। तो ये सबसे पहले तो फेलियर है। ये एक साफ साफ कंपैरिजन बताता है कि यूपी के चीफ मिनिस्टर और हरियाणा के, हालांकि दोनों बीजेपी के हैं, उनकी परफॉर्मेंस में कितना फर्क है, लॉ एंड ऑर्डर में कितना चेंज लेके आए हैं। एक तरफ था हरियाणा जिसको प्रोग्रेसिव और काइंड ऑफ एक अलग पैमाने पे माना जाता था, वो दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरी तरफ यूपी था वो अपने आप को ऊपर उठा रहा है आज। इसीलिए कोई शक की बात नहीं है, एनसीआर के आसपास हैं। इसका नुकसान जो हरियाणा में अगर इस तरह का माहौल बनेगा, इसका नुकसान हरियाणवी को ही सहना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि हरियाणा सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए अगर उनको लोगों का भरोसा वापस जीतना है तो। बिल्कुल सर। इसी के साथ सर एक खबर और आई है, पूरे दुनिया में जो भारतीय जा रहे हैं उनमें से 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी। देखो, बेसिकली इट इज़ क्वाइट नॉर्मल, हम ग्लोबल विलेज बोलते हैं, और जब कोई जाता है तो हम परेशान होते हैं। वो दिल से हमारे से जुड़े रहे, लोगों की फैमिलीज हैं, लोगों की एस्पिरेशंस हैं, लोगों के करियर बन जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। तो 1.5 लाख लोग 130 करोड़ में से जाना मेरे को लगता है इज़ क्वाइट नॉर्मल। और मैं ये चाहूँगा कि दुनिया का बेस्ट टैलेंट हमारे यहाँ पे भी आए। अभी तो हमारे यहाँ पे अपनी पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, राइट। पहले तो हमें अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी, राइट। वी हैव टू गिव द बेस्ट सर्विसेज टू एवरीवन। और अदरवाइज, और अनफॉर्चुनेट पार्ट बताऊं कि हमारा बेस्ट टैलेंट कई बार बाहर चला जाता है, और ज़्यादातर लोग इन दी कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटी यूएसए ही गए हैं। तो इट्स अ क्वाइट नॉर्मल थिंग विच इज़ हैपनिंग। पर इसको किस तरह से इसके डायनेमिक्स ऐसे हों कि जो भारत है उसको भी इसमें बेनिफिट हो। बिल्कुल, जैसे आपने कहा, जो क्रीम है, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो भारत के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, हो सकता है कि वो लोग ज़्यादा गिनती में बाहर जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो लोग यूएसए वगैरह इमिग्रेट कर रहे हैं, दे हैव सर्टन कैपेबिलिटीज़, वहाँ पे उनको स्किल्ड लेबर के अंडर या अलग जो भी उनकी हैं सिस्टम्स, उसके अंदर उनको लाया जा रहा है। और आप देखेंगे यूएसए में सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस अगर कोई वर्ग के लोग कर रहे हैं वो भारतीय हैं। अगर वहाँ पे जितने भी इमिग्रेशन है, चाहे किसी भी कंट्री से आए हो, चाहे चाइना हो, चाहे मैक्सिको हो, चाहे फिलीपींस हो, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम, राइट। और सबसे रिस्पेक्टेड जो कम्युनिटी है वो इंडियंस की है यूएसए के अंदर। और इसका भारत को भी नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं। देखो, अगर आपका बेस्ट टैलेंट जाता है कहीं ना कहीं नुकसान होता है, पर मेरे को ये लगता है हमें जो हमारी वैदिक वैल्यूज़ रही हैं कि पूरी दुनिया एक है, शायद वो वहाँ पे जाके कुछ देश के लिए और बेटर कर पाए। तो इसको मैं इस तरह से नहीं आंकता। हम तो चाहेंगे कि वहाँ का भी बेस्ट टैलेंट हमारे यहाँ पे आए और हमारे देश को ग्रोथ में हेल्प करे, अपने बेस्ट आइडियाज़ हमारे साथ भी शेयर करे। सर, जो यूएस और नाटो ने सैंक्शंस लगाए हैं उस वजह से रशिया की सप्लाई भारत तक नहीं पहुँच रही है एलएनजी की। देखो, रशिया से हम एलएनजी लेते थे रूटीनली थ्रू इट्स कंपनी, जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी थी, वहाँ से सप्लाई होती थी। और नेटो सैंक्शंस के अंदर सप्लाई पे देखो, यही तो सबसे बड़ी वरी है, यही तो एक बात जो भारत बोलना चाह रहा है, पूरी दुनिया को समझाना चाह रहा है कि इमीडिएट सेसेशन ऑफ वायलेंस, राइट, सिट एंड टॉक। और उसका खामियाजा वेस्ट और यूरोप तो हमें कह रहा है कि आप तो रशिया से कुछ भी मत लो, हमने अपना इंटरेस्ट देखना है। और उन सेक्शंस का आप देख लें हमारे ऊपर असर हो रहा है। बिल्कुल। और ये प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड एलएनजी हमारे देश का गरीब वर्ग भी यूज करता है, गांव-गांव तक आजकल एलएनजी घर में यूज होती है। तो मेरे को ये लगता है कि ये जो हेजेमोनिक माइंडसेट है नेटो का, वेस्टर्न कंट्रीज का, इवन रशिया का भी मैं ले लूं, इन सब चक्कर के अंदर जो अपकमिंग कंट्रीज हैं, जो
पुअर कंट्रीज हैं जहाँ पे ज़्यादा लोगों को बेसिक नेसेसिटी की ज़रूरत है, वो ज़्यादा सफ़र करती हैं जी। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मेरे को लगता है यूनाइटेड नेशन शुड डेवलप अ बैकबोन नाउ। जी। यूनाइटेड नेशन वही करता है। क्या यूनाइटेड नेशन का आपने कोई रोल देख रहे हैं इस वॉर में? नेटो बोल रहा है, इंडिया पे प्रेशर बनाया जा रहा है, रशिया बोल रहा है, चाइना बोल रहा है, तो यूनाइटेड नेशन किस लिए है? क्या यूनाइटेड नेशन की आप न्यूज़, हम न्यूज़ फील्ड में हैं, हम जर्नलिज्म में हैं, हम इंटरनेशनल न्यूज़ सुन रहे हैं, हम इस कॉन्फ्लिक्ट को इतने महीनों से कवर कर रहे हैं जी। तो क्या आपने यूनाइटेड नेशन की तरफ से कोई भी कॉन्क्रीट स्टेप्स देखे? बिल्कुल नहीं। तो फिर यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन की रेलेवेंस क्या है? जी। आज यूनाइटेड नेशन पिछले 70-75 सालों में अपनी रेलेवेंस कम करता जा रहा है। वो कुछ पावरफुल कंट्रीज के हाथ की कठपुतली बन के रह गया है, चाहे वो वीटो कंट्रीज हों, राइट? तो मेरे को ये लगता है कि ये जो वीटो कंट्रीज वाला सिस्टम है अब मल्टीपोलर कंट्रीज होंगी, मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा, तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज होगा जो रूल बेस्ड होना चाहिए, जो फेयर होना चाहिए। तो अगर यूनाइटेड नेशन कोलेक्टिवली, देखो ज़्यादातर कंट्रीज, अगर मैं 5-6 कंट्रीज का जो मेजर प्लेयर्स हैं इसके अंदर जो वॉर चाहते हैं, उसमें यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, यूके आ गया, यही लोग थोड़ा पूरी दुनिया के लिए डिसाइड करेंगे। बिल्कुल, राइट? आज हमें यूरोप के लोग ज्ञान बांटते हैं कि भाई रशिया ने लड़ाई की और आपने यूरोप का साथ नहीं दिया, ठीक है, और ये पूरे लॉज के अगेंस्ट है, वर्ल्ड ऑर्डर के अगेंस्ट है। तो जो अफगानिस्तान में हुआ उस पर यूरोप ने क्या किया, जो एशिया में हो रहा है उसके ऊपर यूरोप क्या कर रहा है? तो मेरे को लगता है कि ये चीज बतलाती है कि भाई आपके एक्शंस हमें किस तरह से इंपैक्ट कर रहे हैं, और दूसरा जो आपके लिए प्रेसिंग इशू है, हमारे अपने प्रेसिंग इश्यूज हैं, तो हमें उनको सॉल्व करना है। तो ये सारी चीजें जस्टिफाई करती है इंडिया का डिसीजन कि जब वो नेटो और यूएस की बात नहीं मानते हैं और अपने लिए लो कॉस्ट ऑयल अगर इंपोर्ट करते हैं, तो हमारी कंट्री बिल्कुल सही कर रही है। जी। जो देश भारत को इक्वालिटी पे लेक्चर देते हैं, वो देश पूरी दुनिया में इक्वालिटी नहीं ला पा रहे। देखो, वो इक्वालिटी उनका नुकसान करेगी जी। इनइक्वालिटी के उनको बेनिफिट मिल रहे हैं इनइक्वालिटी के। पूरी दुनिया के रिसोर्सेज पे उन्होंने कब्जा कर रखा है। मैं फ्रांस का एग्जांपल देता हूं। एक अफ्रीकन नेशन जिसको उन्होंने अपनी कॉलोनी से आजाद किया, हर साल $500 बिलियन उनकी तरफ से वो कॉलोनी की फीस अभी भी जारी है, राइट? तो वो देश तो गरीब रह रहा है, बिल्कुल, जबकि फ्रांस उस गरीब देश से $500 बिलियन हर साल लेता है। अगर उस देश से कुछ भी एक्सपोर्ट होना है, वो पहले फ्रांस जाएगा, और ये उन्होंने बाय फोर्स उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे हैं, और आज भी उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स वही मैनेज करते हैं। तो इनइक्वालिटी के वो हालांकि इक्वालिटी की बात करते हैं, पर वो इक्वालिटी चाहते नहीं है। अगर वो इक्वालिटी चाहते तो जो कंट्री जिसकी 5% पॉपुलेशन है दुनिया की, वो 25% दुनिया की एनर्जी कंजम्पशन ना करता, और फिर क्लाइमेट चेंज पे वो ईस्टर्न कंट्रीज को ज्ञान ना देता। जी सर, ईरान ने पुतिन को बुलाया है, और हो सकता है चर्चा हो गैस सप्लाई की और ग्रेन सप्लाई की भी। देखो, ईरान का यूएस के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है। ईरान और रशिया के हमेशा क्लोज टाइज रहे हैं। रशिया ने उनकी सपोर्ट की है हमेशा व्हेन इट कम्स टू आर्मिंग देम ऑल्सो। तो ये दुनिया ना बड़ी कॉम्प्लेक्स है। अब ईरान के इंडिया के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं, राइट? वहाँ से हमारे इम्पोर्ट होते रहे हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल रिलेशन रहे हैं। तो वर्ल्ड इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्लेस। और मेरे को ये लगता है कि अब जैसे ईरान जनरली इंपोर्ट करता है राइस, व्हीट वगैरह, तो और ऑयल एक्सपोर्ट करता है। अब ये दोनों कंट्रीज इस वक्त जॉइंटली यूएस के सैंक्शंस को फेस कर रही हैं, तो दे विल डेफिनेटली, उनके नेचुरल इंटरेस्ट है, वो एक दूसरे से टाई अप करेंगे। अब इस सिचुएशन में इंडिया कैन ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल, राइट? इंडिया रशिया से तो ले ही रहा है। अब इंडिया ने ये प्रूव कर दिया कि वी हैव इनफ क्लाउट, हमारा इनफ इन्फ्लुएंस है, हमारे पास इनफ ताकत है कि कोई भी कंट्री हमारे ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा सकता। हमने अपनी प्रभुत्वता इन टर्म्स ऑफ कि हम एक सॉवरन नेशन है, हम अपने लोगों का इंटरेस्ट पहले ऊपर रखेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इसके अंदर बार्टर सिस्टम के ऊपर डिस्कशन हो सकती है, टुवर्ड्स यूएस और नेटो कैसे रिएक्शन देना उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। तो ये एक अलायंस बनता जा रहा है विच इज़ एंटी यूएस एंड एंटी नेटो अलायंस। और इंडिया का बेस्ट इंटरेस्ट इसी में है कि हम अपने सारे रिलेशन को एक दूसरे से डीहाइफिनेट करके देखें और बेस्ट डिसीजन वही लें, एक जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा हो। ये हमारा एक सोच होनी चाहिए, हमारे लोगों के लिए अच्छा हो, राइट? हमने अपने इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और हमारी नेशनल सिक्योरिटी, ये 3-4 चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखनी चाहिए। जी शुक्रिया सर।
इस तरह की ज़रूरी जानकारी के लिए और तमाम करंट अफेयर्स के लिए देखते रहिए इनसाइट्स विद विशाल सूद, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन सोशल मीडिया।